Hello, Namaskar guys. Welcome back in chapter number 8, Kasayanam Koopradha. In the previous video, we have learned that Gandhiji cleared the doubt of Swami Satyadev, and ultimately what is the reaction of Swami Satyadev? The ultimate decision Gandhiji leave on Swami Satyadev. And now what is the reaction of Swami Satyadev? That one is given in the last two lines. So only two lines are left right now. We are at page number 30, last two lines. So here we can say that Gandhi Mahodayasya etadrasham vachanam srutva Swami Satyadevasya sansayah तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः. तस्मिन्नेव संधि इज देयर. तस्मिन् प्लस एव क्षणे व्यपगतः. व्यपगतः disappeared we call it. तस्मिन् क्षणे instantly. संशयः we call it doubt. संशय means doubt. तस्मिन् एव क्षणे instantly, or at the same time we call it quickly. And vyapagata means disappear. So we can say that hearing such words of Gandhiji, Gandhi Mahodayasya etadasam vachanam srutva, hearing such etadasanam vachanam srutva. Srutva means hearing. Etadasham vachanam, such words. Gandhi Mahodayasya of Gandhiji. Hearing such words of Gandhiji, Swami Satyadeva's doubt instantly disappeared. Next. Sah kasaya vastranam tyagam krutva seva karye atmanam yojayitum sanadda abhavata. Last word sandhi is there. Sanaddah abhavata. We have already seen the sandhi of such a types. Okay, whenever this word is there, such a type of symbol is there in the word, it becomes a. And the previous words we are making visarg. यानी कि ये जो द है उसको हम विसर्ग में ले जाएंगे. विसर्ग अगर उसके पर मात्र है तो वही की वही रहेंगे. आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट. नाउ वी कैन से सह ही सनद्धो अभवतः. यहाँ से सीधा यहाँ पे ट्रांसलेशन पर बिकेम रेडी. Atmanam, to involve himself. He became ready to involve himself. Seva karye, into the work of service, or we can also say that into the social work. Tyagam, giving up. Kasaya vastranam, saffron clothes. We are doing the translation quite opposite. So here we can say that he became ready to involve himself into the work of service, giving up the saffron clothes. Here it's the end of the chapter. Let me proceed into the exercise. Words meaning at least once you go through it. Here samas is there. Go through it.
Select the proper option from the given option. Number 1. स्वातंत्र्य आंदोलनस्य व्यवहारः आरम्भदिनेषु कुत्र प्राचलत्? In the early days, the movement of freedom, where the movement of freedom was going on in early days. So here we call it Sabarmati Ashrame. Option number 1, it is the correct answer. Number 2. गांधी महोदयस्य कार्येण कः प्रभावितः च प्रसन्नः आसीत्? Again number 1, Satyadeva. Point number 3. गांधी महोदयस्य पुरतः किं कर्तुं सत्यदेवः समर्थः न अभवत्? तो हियर रोषं प्रकटयितुं, he did not explain his anger in front of Mahatma Gandhi. What was Swami Satyadeva was unable to express in front of Mahatma Gandhi, so his anger. Point number 4 and 5. सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा गांधी महोदयः कथम् अवदत्? So here again option number 4, option number 1, it is the correct answer, शांत स्वरेण. Number 5. संन्यासः कीदृशः संकल्पः वर्तते? એ સંન્યાસ કેવા પ્રકારનો સંકલ્પ છે? તો મનોગત, અકોર્ડિંગ ટુ Mahatma Gandhi, and ultimately Swami Satyadev also agreed with Mahatma Gandhi. The sannyas is only a mental resolve. Let me proceed on the next question. Question number 2. Write the answer of the following question in Sanskrit is given in the homework. Question number 3. अधो लिखितानि क्रियापदानि वर्तमान कालस्य रूपत्वेन परिवर्तयत्. All these verbs are given in the past tense and you have to turn into the present tense. Whether it may be the परस्मै पद और may be the आत्मनेय पद. आपको बराबर देखना है कि ये वर्ब परस्मै पद में दिए हैं या आत्मनेय पद में दिए हैं. ये सारे 1 to 5 वर्ब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में है, आपको प्रेजेंट टेंस में ले जाना है. मगर आत्मनेय पद का आत्मनेय पद में जाएगा, परस्मै पद का परस्मै पद में जाएगा. तो फर्स्ट वर्ब प्रारभत, दैट वन इज रिलेटेड टू आत्मनेय पद. सो हियर इन प्रेजेंट टेंस इट विल बी प्रारभते. ई वह महे से इथे द्वे ते इते अन्ते. ते अन्य पुरुष एक वचन. वर्तमान काल के अंदर ये अन्य पुरुष एक वचन का ये प्रत्यय है, तो ऐसे होगा. नेक्स्ट में जाते हैं. आगच्छत, यहाँ आप त को रिमूव करेंगे क्योंकि आ ऑलरेडी है. पास्ट टेंस में हम अ लगाते हैं वर्ब के आगे, मगर यहाँ मूल वर्ब यानी कि रूट फॉर्म वर्ब का है वो आगच्छ ही है, इसलिए हम यहाँ से आ नहीं हटाएंगे. सिंपली इस प्रत्यय के जगह हम ती लगा देंगे तो आगच्छति हो जाएगा वर्ब. नेक्स्ट में नंबर 3. नंबर 3 में हम दो काम करेंगे. अ को भी हटाएंगे, त को भी हटाएंगे, तो हमको ऐसा मिलता है कथ, रूट फॉर्म मिलता है. ओके. चौथा गणनो प्रत्यय है तो य लगावो पड़े, कथय. और ये पास्ट टेंस में अन्य पुरुष एक वचन है, तो वर्तमान काल के अंदर अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है
ति कथयति। नंबर 4 भविष्यति, ये फ्यूचर टेंस है। भविष्यति यानी कि सारे वर्ब हमारे पास्ट टेंस के नहीं हैं, ये भविष्य काल है। तो अब भविष्य काल में से वर्तमान काल में ले जाने के लिए हमें इतना हटाना पड़ेगा, क्या? ईष्यति, ये ईष्य भविष्य काल का है और ये सफिक्स है, ठीक है, ये सबको हटाना पड़ेगा। तो हमको अब रूप मिलता है भव, और अंति अन्य पुरुष बहुवचन है, ठीक है। तो हम यहाँ भी अन्य पुरुष बहुवचन करेंगे, भवन्ति। नेक्स्ट में नंबर 5 पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम अ को हटाएंगे और त को हटाएंगे, तो मिलता है कु प्य, त के जगह ति। ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। आई होप यू हैव रिटन। लेट वी प्रोसीड अहेड। Select the proper words instead of the underlined words and make a question sentence. Underline जो शब्द है उसकी जगह जो ब्रैकेट में शब्द दिया है उसका उपयोग करके हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। तो नंबर 1, सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदयः स्वीकृतवान्। तो हमें क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि सत्यदेव का प्रस्ताव किसने स्वीकार किया, ठीक है। ये मैस्कुलाइन जेंडर है यानी कि पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हम कह का उपयोग करेंगे, नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, सन्यासी जनाः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति। तो के बहुवचन है, के इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2। नंबर 3, केवलम काषाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं वदामि। तो यहाँ केशाम, नंबर 3। नंबर 4, शृणोतु भवान् सावधानेन मनसा। તમે સાવધાન મનથી સાંભળો। તો તમે કેવા મનથી સાંભળો, આપણો પ્રશ્ન આવો કરવો છે। સાવધાનેન મનસા, સાવધાનેન ઇટ ઇઝ ધ એડજેક્ટિવ ઓફ માઇન્ડ, તો વી હેવ ટુ રિમૂવ એડજેક્ટિવ, ઓકે। તો कीदृशीन ये नंबर 4 है, कीदृशीन, ओके। नंबर 5, ते भवतः सेवा कार्यं न अंगीकरिष्यति। तो लास्ट में है भवतः की जगह कस्य, ये नंबर 5। नंबर 5 we will see it later on because this question it is related to vibhakti and right now we have not seen the vibhakti, okay, which is already given in abhyas. Once whether you see in the grammar portion in the textbook, so you can easily find out, but we will see it later on. This one we have already seen, okay, introduction of verb. So very quickly you write down. First one example, it is given at the time of explaining the verb we have to keep 5 points. First one root form, but it is not given here, only 4 points given. Tense, kalah, padam, purushah, vachanam. तो नंबर 1 भविष्यति, भविष्यन्ति। तो फर्स्ट वन, एक तो क्षति है तो भविष्य काल है, ओके। अंति प्रत्यय लग गया है तो परस्मैपद है। भविष्य काल
परस्मय पद। अब पुरुष कौन सा है, तो कि भाई अन्य पुरुष, और वचन कौन सा है, तो कि बहुवचन। भविष्यकाल, परस्मय पद, अन्य पुरुष, बहुवचन। नंबर 2, प्राचलत, पेज नंबर 33। तो प्राचलत है, भूतकाल है, त जो प्रत्यय है ना वो भूतकाल का है, अन्य पुरुष एक वचन का, बराबर। परस्मय पद है, सारे परस्मय पद के हैं ये। प्राचलत भूतकाल, यहाँ आएगा भूतकाल, परस्मय पद, अन्य पुरुष, एक वचन। ये सब एक वचन है, एक वचन, सारे एक वचन है। ओके। नंबर 3, अकथयत, अगेन पास्ट टेंस, भूतकाल, ये भी भूतकाल का है, ये भी भूतकाल का। परस्मय पद, परस्मय पद, परस्मय पद। उसके बाद अन्य पुरुष एक वचन। लास्ट वन, भवामी। भवामी है वर्तमान काल, परस्मय पद, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन है ये, पुरुष, और एक वचन। लास्ट वन, एक वचन। लेट मी प्रोसीड अहेड। पददत्तानां शब्दानां प्रयुक्तः वाक्यानि रचयत। We have to, one day he came to ashram. The sentence it is given in English, we have to translate it into Sanskrit using the given words. So we can say that, write down, you can also get it from the textbook. एकस्मिन् दिवसे सः आश्रमम् आगच्छत्। एकस्मिन् दिवसे सः आश्रमम् आगच्छत्। Number 2, he was very much impressed by work. So we can say that कार्येण अतीव प्रभावितः अभवत्। सः कार्येण अतीव प्रभावितः अभवत्। Number 3, write down, how can I be ready to give up? त्यागं कर्तुं, to give up, त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तः भवामि। Repeat again, त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तः, विसर्ग, प्रवृत्तः भवामि, question mark, because the sentence it is question sentence. Last one, I tell you to give up only saffron clothes. Only, केवलम, saffron clothes, कासाय वस्त्राणां, केवलम कासाय वस्त्राणां, to give up, त्यागाय, 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 वदामि, केवलम कासाय वस्त्राणां त्यागाय वदामि। Let me proceed on question number 8, very very important। 9th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम के अंदर 2 मार्क्स का होगा, बोर्ड के अंदर 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
तो 10 स्टैंडर्ड का 1 मार्क अभी से आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम 9 स्टैंडर्ड में क्रुदंत 2 प्रकार के, एक क्रुदंत है संबंधक, और दूसरा है हेतवर्थ। हेतवर्थ 2 प्रकार के क्रुदंत हमें देखना है, और इन दोनों प्रकार का क्रुदंत को समझना बहुत ही आसान है। उसका तरीका ये है कि जिस शब्द के पीछे तबा लिखता हूँ त्वा अथवा य आता है तो उसको संबंधक क्रुदंत बोलते हैं। शब्द के पीछे एज ए सफिक्स वी कैन, और जिस शब्द के पीछे तुम आता है, तुम, उसको हेतवर्थ बोलते हैं। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कि कौन सा संबंधक है, कौन सा हेतवर्थ है। जैसे पहला वर्ड विकीर्य, तो लास्ट यहाँ य आया, य, तो संबंधक क्रुदंत है, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब वर्ड नंबर 2 भवितुम, तुम आया, यानी हेतवर्थ क्रुदंत है। एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू हेतवर्थ क्रुदंत। नंबर 3 आदाय, लास्ट लेटर इट इज य, सो इट इज संबंधक क्रुदंत। नंबर 3 आसान है ना? इट इज वेरी वेरी इजी। सिंपली यू हैव टू कीप वन पॉइंट इन योर माइंड कि द वर्ड विच टेक तुम आफ्टर इट, इट इज हेतवर्थ। बाकी का समझ में नहीं आता है तो संबंधक लिख देना, ठीक है। नंबर 4 कौन सा है? तुम आया, तो हेतवर्थ है। और लास्ट में 5 धृत्वा, दत्वा, कृत्वा, आदायो, ये सब संबंधक है। तो नंबर 5 संबंधक क्रुदंत है। क्लियर? ओके। डोंट राइट इन अ क्लासवर्क कॉपी, only write down in a textbook. Only questions, answer and translation are given in the homework. You have to write into the classwork copy. Similarly, question number 9 is also given in the homework. Give the following answer in English. Clear? And that's it from me in this video. In the next video, we will see the another chapter or maybe the grammar point. Clear? Thank you very much.